السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، من صلی علیہ واحدۃ وجبت لہ شفاعتی، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے ناظرین، میں امید کرتا ہوں تمام عاشقان رسول خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں آپ کا دوست محبوب عالم آفاقی مجددی نقشبندی۔ پیارے پیارے ناظرین، آپ اگر ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں یا ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کرنا اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ آئیے میں آپ کا ٹائم خراب نہ کرتے ہوئے میں آپ کی بارگاہ میں کچھ کلمات رکھنے کی کوشش کروں۔ دیکھیے، اس وقت میں ایک حجاب کے اوپر بڑا مسئلہ اٹھا ہوا ہے کہ حجاب کیا چیز ہے، حجاب بڑی بری چیز ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ لوگ نہ جانے کیا کیا اس حجاب کے تعلق سے بیان کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کو بیان میں بتاؤں کہ کمی ہماری ہے، کمی اسلام کے نوجوان اسلامی بھائیوں کی کمی ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو حجاب نہ پہنایا۔ تب اسی وجہ سے ہمیں یہ دن دیکھنا پڑا۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا، جو زمانہ جاہلیت تھا، جیسا اس وقت میں جو جاہل لوگ ہیں، جو اسلام کی تعلیم سے دور ہیں، جو ان کے ساتھ میں یہ بدتمیزیاں ہو رہی ہیں، ایسے ہی زمانے جاہلیت میں وہ وقت تھا کہ عورتوں کے ساتھ میں بدتمیزیاں کی جاتی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جب آیت نازل ہوئی، جب معاشرے کا حال اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، پاک پروردگار عالم، تو جب دعا کی کہ رب قدیر معاشرے کا حالات بگڑے ہوئے ہیں تو مجھے حکم فرما، تو اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت نازل فرمائی۔ سمجھے، آسمان سے آیت نازل فرمائی، اور آیت ہے، میں آپ کو بتاؤں، سورہ احزاب آیت نمبر 59 ہے اور 22ویں پارے کی آیت ہے، آیت نمبر 59۔ آپ اس کو پوری مختصر یعنی کہ تفصیل سے آپ اس کو پڑھیں۔ میں آپ کے سامنے حوالہ رکھ رہا ہوں، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اے نبی، اپنی بیویوں اور اپنی صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے اوپر ڈالے رکھیں۔ کیا فرمایا؟ اللہ نے حکم دیا ہے، محبوب تم اپنی بیویوں، اپنی شہزادیوں، صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادر کا ایک حصہ اپنے سر پر ڈالے رکھیں۔ کیوں؟ عزیزان ملت اسلامی آگے فرمایا، یہ اس سے زیادہ نزدیک ہے کہ وہ پہچانی جائیں تو انہیں ستایا نہ جائے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آپ غور کریں، دو لڑکی ہیں، ایک حجاب میں جا رہی ہو اور ایک چست کپڑوں میں جا رہی ہو، اس کے بدن کے اعضاء ظاہر ہو رہے ہوں، اور ایک لڑکی اپنے پورے بدن کو ڈھانپ کر کے جا رہی ہو، تو غور کریں، یہ زمانے کے خبیث لوگ، یہ زمانے کے کتے کس کی طرف دیکھیں گے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہماری غیرت ڈوب چکی ہے، ہماری بیٹیاں ہمارے سامنے بے پردہ گھومتی ہیں، ہماری آنکھوں میں حیا نہیں ہے، ہماری بہنیں بے پردہ گھومتی ہیں، ہماری آنکھوں میں حیا نہیں رہی ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، میری بات تھوڑی تلخ ہے، کڑوی ہے، مگر بات میں سچائی ہے۔ میری پوری بات کو سننے کے لیے سن کر کے جانا۔ یاد رکھو، ہم اگر کسی کی بہن کے ساتھ میں کھلواڑ کر رہے ہیں تو یاد رکھو کل کو ہماری بہن بھی، ہماری بیٹی بھی ہے۔ میں نے پڑھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، اگر کوئی کسی بہن کے ساتھ، کسی کی بہن کے ساتھ میں بدتمیزی کرتا ہے، زنا کرتا ہے، تو یہ قرض ہے، اس کی بہن سے لیا جائے گا، اس کی بیٹی سے لیا جائے گا، یا اس کی پوتی سے لیا جائے گا۔ کوئی گوارا کرے گا کہ اس کی بیٹی کے ساتھ میں غلط کام کیا جائے، اس کی بہن کے ساتھ میں غلط کام کیا جائے؟
देखिए अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ए नाज़रीन, हमें सुधरने की ज़रूरत है, हमें समझने की ज़रूरत है। हम अपनी बेटियों को हिजाब पहनाएं, हम अपनी बेटियों को इस्लामी तालीम दें, हम अपनी बेटियों को अच्छी अच्छी तरबियत से उन्हें नवाजें, उनकी अच्छे से परवरिश करें। याद रखें वो दिन दूर नहीं है कि जिस दिन हमें अल्लाह के सामने हाजिर होना पड़ेगा, और इसी वजह से हम दुनिया में शर्मिंदा किए जा रहे हैं, इसी वजह से हम ज़लील और ख्वार हो रहे हैं। मेरी बात बहुत लंबी बढ़ जाएगी, मैं आपको बताता चलूं इस ज़माने का माहौल फिल वक्त क्या चल रहा है। एक कर्नाटक की शहजादी, मैं सलाम करता हूँ उस मुस्कान खान को कि उसके बाप ने अपनी बेटी को ऐसी तरबियत दी कि 100 कुत्तों में वो एक शेरनी बन के खड़ी रही। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला उसको तरक्की दे, उसको सलामत रखे, और उस जैसी इस जमाने में लाखों बेटियां पैदा करे। रब्बे कदीर हर बेटी को ऐसा दिल, ऐसा जिगर दे कि उन कुत्तों का, जालिम कुत्तों का सामने शेरनी बन करके मुकाबला करें। ऐ मेरे नौजवानों, ऐ मेरी इस्लामी बहनों, हमें अपनी इज्जत संवारनी चाहिए, हमें अपनी इज्जत खुद करना चाहिए। अगर हम सुधर गए तो लोग हमारी इज्जत खुद करेंगे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरी बात बहुत लंबी हो जाएगी, मैं आपसे बताऊं। देखिए किसी ने क्या खूब कहा था कि हिजाब के ताल्लुक से, और ये बात उस लड़की ने अपने एक शेर में, यानी कि नारे तकबीर, नारे रिसालत, जो उसने नारे तकबीर का जो नारा बुलंद किया है, तो किसी ने क्या खूब लिखा है, हमने सीखा है अदाने सहर से ये उसूल, हमने सीखा है अदाने सहर से ये उसूल, लोग ख्वाबीदा ही सही हमने सदा ही देनी है, लोग ख्वाबीदा ही सही हमने सदा ही देनी है। प्यारे प्यारे अजीज़ान मिल्लत इस्लामी, चाहे दुनिया सो रही हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें नारे तकबीर को बुलंद करना है, हमें अपने इस्लाम के दामन को मजबूती से पकड़ना है, हमें अपनी शरीयत को मजबूत रखना है, हमें कुरान के बताए हुए रास्ते पर चलना है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और मैं आपको बताऊं किसी ने क्या खूब कहा है, उस बेटी के ताल्लुक से मैं शेर पढ़ रहा हूं जो मुस्कान खान है, उसको मैं सलाम करता हूं। कहते किसी ने क्या खूब लिखा है, अहले शर खाइफ है तेरी जुर्रत तकरीर से, अहले शर खाइफ है तेरी जुर्रत तकरीर से, बंध गए हैं पाँव उनके खौफ की जंजीर से, दुख्तर इस्लाम हो तेरी शुजाअत को सलाम, दुख्तर इस्लाम हो तेरी शुजाअत को सलाम, खलबली तूने मचा दी नारे तकबीर से, खलबली तूने मचा दी नारे तकबीर से। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उसी के ताल्लुक से क्या खूब किसी ने कहा है, जंग में खिलता हुआ गुलाब देखा है, जंग में खिलता हुआ गुलाब देखा है, लहू लुहान आंखों में ख्वाब देखा है, कहेंगी फख्र से सदियों तक नस्लें, कहेंगी फख्र से सदियों तक नस्लें, हमने नकाब में भी इनकलाब देखा है, हमने नकाब में भी इनकलाब देखा है। अगर हमें इनकलाब लाना है तो हमें नकाब ओढ़ना पड़ेगा, हमारी बहनों को नकाब में आना पड़ेगा, हमारी माओं को नकाब में आना पड़ेगा, हिजाब में आना पड़ेगा। और अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, किसी ने क्या खूब कहा है, अगर हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज, हमारी यूनिवर्सिटियाँ होती तो उम्मत की बेटियों को यह दिन नहीं देखने पड़ते। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम स्कूलों से इतनी दूर हो गए हैं, हम अपनी यूनिवर्सिटियों से इतनी दूर हो गए हैं, हमने बुरा समझ रखा है और हमने अपनी खुराफातों में सारे के सारे पैसों को बर्बाद कर दिया है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर अपनी शादियों में कम खर्च करें, कम अखराजात करें, अपनी बेटियों को कम दहेज दें, अपनी बेटों की शादियों में हम कम दहेज लेना शुरू कर दें,
और स्कूल बनाना शुरू कर दें, यूनिवर्सिटियाँ बनाना शुरू कर दें, तो हमारी बेटियाँ किसी गैरों के स्कूलों में नहीं जाएंगी। हमारी बेटियाँ खुद हमारे स्कूलों में आएंगी और हमारी बेटियों पे कोई उंगली नहीं उठाएगा, हमारी बेटियों की तरफ कोई गंदी नज़र नहीं उठाएगा और हमें ये दिन देखना नहीं पड़ेगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं अपनी बात को बहुत समेटते हुए आखिर में ये बात कहूँगा कि दुनिया जो कहे कहने दो, तुम्हें सिर्फ और मुझे सिर्फ इतनी बात कहनी है, हमें ये राइट है, ये हमें इजाज़त है कि हम अपनी बेटियों को नकाब उड़ाएं। याद रखें, हम अगर किसी की बहन को गुलाब दे सकते हैं, फूल दे सकते हैं, कि हम अपनी बहन को नकाब नहीं दे सकते हैं? अजीज़ान मिल्लत, शर्म आनी चाहिए हमें और हमारे मुआशरे के नौजवानों को कि हमें ऐसी हरकतों पे उतर आए हैं और अपनी बहनों को बेपर्दगी पे उतार रखा है। अल्लाह अकबर। मैं इतनी बात कहूँगा उस मुस्कान खान को सलाम करते हुए, उस बेटी को सलाम करते हुए, हिजाब इज़ आवर राइट, यानी कि ये हमारा हक है, हमें इजाज़त देता है संविधान कि हम अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी माओ को हिजाब उड़ाएं। और अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं खुद उसकी तारीफ करता हूँ। मैं खुद की तारीफ में एक बात कहूँगा, आई एम सपोर्टिंग हिजाब, यानी कि मैं उस हिजाब में उसकी हिमायत करता हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा, अगर आपके घर में बेटी छोटी है या बड़ी है तो आप उसको पर्दे में रखने की कोशिश करें। देखिए वीडियो बहुत लंबी पड़ जाएगी, बातें बहुत जहन में आ रही हैं इसके ताल्लुक से। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपको यही बताऊँ कि आप अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को हिजाब के अंदर रखने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला ये इनकलाब पैदा होगा और लोग हमारी बेटी की तरफ बुरी नज़र नहीं उठाएंगे। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ए नाज़रीन, आज की इस गुफ्तगू से हम समझ चुके होंगे कि हिजाब किस लिए बेहतर है। आप छोटी सी बात और बताऊं, जब बात जहन में आ रही है, क्योंकि इसके ऊपर रोज़ रोज़ तकरीरें नहीं होती हैं, वक्त के ताल्लुक से मैं तकरीर में, यानी कि मैंने बयान की, गुफ्तगू की है, सिर्फ 2 बातें मैं आपको बताऊं और अपनी बात को ख़त्म करूंगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक बेटी ने एक बाबा से पूछा, एक अल्लाह वाले से पूछा, ए बाबा, मुझे एक बात बताइए कि इस्लाम ने बेटी को पर्दे में रहने की इजाज़त क्यों दी है और बेटों को खुल्लम खुल्ला फिरने की, रहने की इजाज़त क्यों दी है, वजह क्या है? तो उस बाबा जी ने मालूम है क्या कहा था? बेटी, तुमने लोहा देखा है? उसने कहा हाँ देखा है। कि लोहा दुकानों पर ऐसे ही पड़ा रहता है, उस पर हवा भी गुजरती है, आंधी भी गुजरती है, बारिश भी गुजरती है, तूफान भी गुजरता है, गंदा पानी भी गुजरता है, फिर भी उसकी कीमत कम नहीं होती, इस वजह से क्योंकि वो लोहा है। और लोहे जैसी मिसाल बेटे की है, अगर बेटे पर कितना भी बुरा वक्त आ जाए, यानी कुछ भी उस पर हवा गुजर जाए, आंधी गुजर जाए, पानी गुजर जाए, कुछ भी हो जाए, बेटे की कीमत कम नहीं होती। और तुमने, उसने बाबा ने कहा, बेटी तुमने सोना देखा है कि सोने को कितनी हिफाजत से रखा जाता है? संदूक यानी कि अलमारी में रखा जाता है, फिर डब्बी में करके रखा जाता है, फिर कपड़े में करके रखा जाता है, फिर किसी को दिया भी जाता है तो एक तहाइफ के जरिए एक कपड़े पे बिछा करके दिया जाता है ताकि सोने पे मैल ना जाए, सोने की कीमत कम ना हो जाए। तो इसलिए क्योंकि वो एक नाजुक चीज़ है, इसलिए कि वो एक कीमती चीज़ है। अगर बेटी पर्दे में रहती है तो बेटी को पर्दे में इसलिए रखा जाता है क्योंकि एक नाजुक फूल है, अगर उसको लोग कोई छुएगा तो मुरझा जाएगा, वो खराब हो जाएगा, वो गंदा हो जाएगा। इसलिए बेटी, इस्लाम ने बेटी को कहा है, औरत को कहा है कि वो पर्दे में रहे, अपने आप को छिपाए रखे, क्योंकि उसकी कीमत बड़ी रहे, उसकी कीमत अच्छाइयों में बदली रहे। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये उस बाबा जी ने इतना अच्छा सवाल किया, इतना अच्छा सवाल का जवाब दिया, उस बेटी ने उस दिन से यानी कि अमल में बात लाई कि बाबा जी ने सही कहा है, और उस बच्ची ने यानी कि पर्दा करना शुरू कर दिया। तो मैं भी आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप भी अपनी बेटियों को, बहनों को और माओ को पर्दे की तलकीन करें। इंशाअल्लाह ताला ये इनकलाब ज़रूर आएगा और इंशाअल्लाह ताला हमें अच्छे दिन ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला मेरा बोलना, आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जिन हज़रात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।